Hello friends, my name is Surbhi and as I said, we'll be bringing important topics for you which will enhance your preparation. So here we are with a very high yielding topic. Now, I think you all have analyzed previous year question papers. I'm not expecting that you have done 12 or 15, but at least 2 to 3 question paper, you have done it. So after that analysis, the conclusion to which you might have reached, I'm talking about the last paper of CDS. Let's talk about the last paper of CDS. Now, as we can recall, I think approx 4 to 5 questions were based on maps. There was one question asked in which there were rivers asked, like which when you are going from south to north, which all rivers will you face? And the simple answer was the peninsular rivers. Now, if you only know what are the peninsular rivers, you can answer that question. There were questions based on which dam is located where, on which river bank is some dam located, what is the origin of a river, what is the point where the river drains. Basically, what I am talking about is the geography. In geography, most of the questions in these days, I would say the trending topic is Indian drainage. And yes, I bring to you Indian drainage. We will be talking about Indian drainage. They are basically divided in 2 categories. Let me show you. Indian drainage. It is basically divided into 2 categories. One is Himalayan and one is peninsular. See, this is how we will be proceeding. We will learn about the Himalayan rivers. We will be learning about the peninsular rivers. And we are done. We are good too. Okay. So now we will be studying Indian drainage. How to study Indian drainage? What all to study in the Indian drainage? What kind of questions are being asked? First of all, let me tell you what kind of questions are being asked. But even before that, please, I urge you all to take a pen and paper. Make a separate copy if possible. See, we'll be doing a month-long series and I won't make you write so much, but yeah, 1 page per class. So just make a very thin copy and take multiple colors pen. Even I'll be using multiple color. Now I'll tell you the color scheme, okay? So when you write something with a different color, for example, I'm writing everything in blue ink and then I write something which is in red ink. So that red ink thing, the thing written in red ink will pop up. And in examination, you don't have time, okay? 2 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारा क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में और टाइम समझने में ही वेस्ट ना कर दें. क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर सीधा सीधा दिखना चाहिए. वो कैसे होगा? जब आप डिफरेंट कलर की इंक से लिखते हैं तो वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं और आपके ब्रेन में ज्यादा देर तक रहती हैं और एग्जाम में सीधे सीधे वो वर्ड्स देख करके आप आंसर्स लिख सकते हैं. वी विल बी फॉलोइंग अ सिमिलर अप्रोच. ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड अ पेपर व्हेनेवर यू अटेंड माय लेक्चर. तो जहां भी है 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और जाओ और पेन और पेपर लेकर के आओ और फिर हम स्टार्ट करते हैं. नाउ कमिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट डाउन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, अगर कोई रिवर है तो उस पर डैम है तो वो डैम कौन सा है और कहां है. दैट्स इट. ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज एंड देन इफ देयर इज और आर एनी डैम्स. हमें इन्हीं चीजों पे मेन फोकस करना है. बट लुकिंग एट द वेरी लास्ट पेपर ऑफ सीडीएस एंड एनडीए, जो अप्रोच फॉलो की गई थी, एक क्वेश्चन था कि फ्रॉम द साउथ you are moving from south to north, which all river will you face in middle? कौन सी रिवर्स आएंगी? तो आंसर बहुत ही इजी था, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो आएंगी. अब पेनिनसुलर रिवर क्या होती है और हिमालयन रिवर क्या होती हैं? तो सी, इंडियन ड्रेनेज में एक होती है हमारे पास हिमालयन रिवर, एक होती है हमारे पास, ये आप मेरे साथ प्लीज लिखते जाइए, Himalayan river and peninsular. river, Himalayan river and peninsular river. अब Himalayan river में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? I'm writing it down over here. Himalayan river, आप प्लीज इसी के नीचे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 करके लिखिए. Himalayan river
मैं सबसे पहले हिमालयन रिवर में सबसे पहले आती है ब्रह्मपुत्र। हिमालयन रिवर में सबसे पहले आती है ब्रह्मपुत्र। अब अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा विच इज हैविंग आवर सेकंड रिवर इज गंगा which contributes 25% of water. Ganga which contributes 25% of water, whereas Brahmaputra contributes 40% of water by volume. Now ये asked question है कि how much % water by volume is contributed by which river. तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र is longer as compared to गंगा, पर ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन इंडिया में नहीं होता है। We'll study more in detail. But as of now, you should know कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो दैट्स गंगा। बट इंडिया और ब्रह्मपुत्र में दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी कौन सी है, तो वो ब्रह्मपुत्र है। एंड देन द थर्ड रिवर इज इंडस। हम इन तीनों रिवर को डिटेल में पढ़ेंगे, और डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, वो जो हमारे एग्जाम में आता है। और एग्जाम में क्या आता है, ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन के बाद ट्रिब्यूटरी क्या है, और ट्रिब्यूटरीज के बाद उस पे अगर कोई डैम है तो वो डैम कहां पे है, कैसा है, क्या है, बस इतना ही देखना है हमें। तो विल स्टार्ट, बट बिफोर दैट पेनिनसुलर रिवर में क्या क्या आता है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। ये हमें पढ़ना है पेनिनसुलर रिवर में। पेनिनसुलर रिवर स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद हिमालयन रिवर। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर पेनिनसुलर रिवर। नाउ स्टार्टिंग विद ब्रह्मपुत्र। दिस इज ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र कहां तक जाती है, ब्रह्मपुत्र जैसे कि यू कैन सी दिस इज नेपाल, दिस इज इंडिया, दिस इज तिब्बत, चाइना। नाउ आपको दिख रहा है ये है ओरिजिन, जो ब्रह्मपुत्र है उसका ओरिजिन हो रहा है चाइना में, और फिर ब्रह्मपुत्र एंटर करती है इंडिया में। कहां से, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में कहां से, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं। व्हाट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया, नेम द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं नामचा बारवा। इस पॉइंट को कहते हैं नामचा बारवा। जो ओरिजिन का पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, नाउ कीप ऑन राइटिंग इट डाउन विद मी। जो ओरिजिन का पॉइंट है इसे हम कहते हैं कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर लेक। अब सी कैलाश मानसरोवर लेक है, लेक कैसे बनती है, हमको पता है कि लेक बनती है ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तब लेक बनती है। तो कौन सा ग्लेशियर मेल्ट हुआ कि लेक बनी, तो यहां पे चिमायुंगडुंग, जब चिमायुंगडुंग ग्लेशियर मेल्ट हुआ, तब कैलाश लेक का फॉर्मेशन हुआ। जब चिमायुंगडुंग ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो कैलाश लेक का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र इज थ्रू चिमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक, राकस मानसरोवर, विच इज इन तिब्बत, चाइना। अब जब ये तिब्बत चाइना में है तो इसका नाम क्या होगा, इस रिवर का नाम क्या होगा, इस रिवर का नाम चाइना में होता है यारलुंग सापो। चाइना में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं यारलुंग सापो। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आ चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना।
और तिब्बत तो इट इज यारलुंग सापो। अगर आप जितने बार मैं बोल रही हूँ प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 बार देखिए, आपको नाम याद हो जाएंगे। ऐसा लगता है इनिशियली कि नाम थोड़े से टफ है, पर 2-3 बार बोलने के बाद नाम याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। नाउ चाइना में नाम है यारलुंग सापो। उसके बाद अब ये पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये पॉइंट जिस पॉइंट पे एंटर कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं नामचा परवा। नामचा पारवा से जो ब्रह्मपुत्र है इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में कहा? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा पारवा से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है। यहां पर एंटर करने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में, अब देखो इंडिया में भी ना लोगों को नाम रखने का बड़ा क्रेज होता है, हर चीज का नाम रखेंगे, हर स्टेट में अलग नाम रखेंगे। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम है और आसाम में अलग नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने 2 नाम रखे, एक नहीं 2। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, आई एम राइटिंग नेम ओवर हियर, तो इसका नाम पड़ जाता है सियांग एंड दिबांग। अब देखिए जब ब्रह्मपुत्र माउंटेन्स में होती है, एज जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन्स है, तो जब माउंटेन्स में होती है तो नाम होता है दिबांग, और जैसे ही माउंटेन्स से उतर करके प्लेन एरिया में आती है तो नाम हो जाता है सियांग। ये इन माउंटेन्स, दिबांग इज द नेम इन माउंटेन्स, द नेम इज दिबांग, एंड जब प्लेन एरिया में आ जाता है तो नाम हो जाता है सियांग। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद नामचा परवा से एंटर किया, एंटर करने के बाद गई अरुणाचल प्रदेश के बाद गई आसाम में फाइनली ब्रह्मपुत्र को उसका नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। आप लोग प्लीज मेरे साथ लिखते जाइए जो भी मैं लिख रही हूं। आसाम में जाते ही ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। इसके पहले तक अरुणाचल में सियांग और दिबांग नाम होता है, सियांग और दिबांग। उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में नाम मिलता है जमुना। बांग्लादेश में जाते ही नाम मिलता है जमुना। कई लोगों को यमुना और जमुना में कंफ्यूजन होती है, प्लीज मेक इट क्लियर। कई लोगों को यमुना और जमुना में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। जो यमुना है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, एंड जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम पड़ जाता है जमुना। अब हम देखते हैं किसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के बाद किस जगह पे नाम क्या है। अब हमें देखनी है ट्रिब्यूटरीज क्या है। एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। ओरिजिन होता है कैलाश मानसरोवर लेक से चिमायोंगडुंग ग्लेशियर जो कि चाइना में है, कैलाश मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। फिर ब्रह्मपुत्र चलती है। अब ये चल रही है कहाँ पे? तिब्बत में, चाइना में। तो इसका नाम क्या है? यारलुंग सापो। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते टाइम जिस पॉइंट से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है उस पॉइंट को बोलते हैं नामचा पारवा। सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया? वेयर इन इंडिया? इन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से हमारी ब्रह्मपुत्र ने एंटर किया नामचा परवा के बाद जब अरुणाचल प्रदेश में गई तो हमने नाम दिया सियांग एंड दिबांग।
सियांग एंड देबांग। देबांग जब माउंटेन्स में है और सियांग जब प्लेन एरिया में है। इसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्रा को हम यहां से अरुणाचल प्रदेश से आई आंध्र प्रदेश आसाम में आते ही साथ नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का नाम आसाम में ब्रह्मपुत्रा पड़ा और फिर उसके बाद बांग्लादेश में गई तो नाम पड़ गया जमुना। अब हमने देखनी है ट्रिब्यूटरीज। देखिए ऐसे तो ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, पर हमें हर छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करनी है। हमें वो ट्रिब्यूटरीज याद करनी है जो एग्जाम में आ चुकी हैं, जो एग्जाम में आने वाली है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो और हाँ, वो ट्रिब्यूटरीज जो किसी ना किसी तरीके से न्यूज में रही हो, क्योंकि यूपीएससी की पुरानी आदत है जो भी न्यूज में होता है उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये मेहनत भी हमने की हुई है। हमने लास्ट 1 ईयर के न्यूज़पेपर्स में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस आई हैं वो जरूर मेंशन की है इस नोट्स में, ताकि अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आपको बच जाए। तो मूविंग ऑन, ट्रिब्यूटरीज, लेट्स टॉक अबाउट द राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। सी दीज आर द राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। द राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्किम। यहाँ पे starting from Sikkim. Let me change the color. Okay, let's go with green. Would it be visible? Yeah, green is visible. Okay. So see, सिक्किम से आती है तीस्ता। सिक्किम से जो फर्स्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सी, एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज तीस्ता अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा और गंगा? सो यू शुड नो तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मूविंग फ्रॉम वेस्ट to east, arrange all the tributaries in order from west to east. Arrange all the right hand tributaries of Brahmaputra in the order when we move from west to east. या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम से जो ट्रिब्यूटरी आती है ब्रह्मा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है तीस्ता। तीस्ता यहां सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। सिक्किम में जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो है जेमू ग्लेशियर। जो पॉइंट है ये है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर इज द पॉइंट इन सिक्किम। जेमू ग्लेशियर इज द पॉइंट इन सिक्किम जहां से तीस्ता रिवर का ओरिजिनेट होता है। तीस्ता पुट इट एज नंबर 1। तीस्ता नंबर 1 ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तीस्ता के बाद आती है मानस। 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 Second right hand tributaries on moving from west to east is मानस। मानस के बाद आती है कामेंग। कामेंग रिवर। कामेंग is the third, and then fourth is Subhanshiri। Fourth is Subhanshiri। Fourth is Subhanshiri। सुभानश्री रिवर। ये 4 रिवर आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ये 4 रिवर आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तीस्ता के बाद मानस के बाद कामेंग के बाद शुभांशरी एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। शुभांशरी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो बनाती है एक रिवर राइन आइलैंड। जैसे ही शुभांशरी की ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो यहाँ पे बनता है एक रिवर राइन आइलैंड। नाउ दिस इज वर्ल्ड्स largest riverine island।
World's largest riverine island. World's largest riverine island. I'll write the name in red. Even you should write the name in red. What is the name? It is Majuli Island. Majuli. It is Majuli. Maugli. Majuli Island. माजुली आइलैंड बनता है यहां. माजुली आइलैंड जब ब्रह्मपुत्रा एक टर्न लेती है, दिस इज द शार्पेस्ट टर्न. इवन एक न्यूज सुनी होगी आपने कि माजुली आइलैंड इज टू बी कंसीडर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट. यस, इट इज सच बिग. एक आइलैंड है, पर आइलैंड इतना बड़ा है कि उसको डिस्ट्रिक्ट कंसीडर करने का न्यूज आया था. विच इज Majuli Island is the world's largest riverine island formed at Brahmaputra. अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? इससे क्वेश्चन आता है कि what is the name of island, or it could be like Majuli Island is world's largest riverine island. Majuli Island is situated on which river? So the name is Brahmaputra. You're getting it? World's largest riverine island is situated on which river? So the name is Brahmaputra. Now we have seen the right hand tributaries, Majuli Island. Let's move on to the left hand tributaries. I'll just change the ink. I think purple. Okay. So I'm writing down. See, number 1. जो माजुली आइलैंड के पहले ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट होती है, दिस इज लोहित. नंबर 1 ट्रिब्यूटरी. लोहित. Number 1 tributary, left hand tributaries moving from east to west. I hope you all are not confused in directions. This is east and this is west. So moving from east to west, the first tributary would be Lohit. After Lohit, there would be Dhanshri. There would be Dhanshri. The second would be Lohit is first, then Dhanshri is second. Lohit is first, then Dhanshri is second. And then third, I'm writing it over here. Where should I write it? Okay, I'll write it over here, okay? Number third is Kushiara. Number third is Kushiara. Lohit, Dhanshri and Kushiara. Now let's take a quick review. So a quick revision, a start point. Let's see the start point. One sec, allow me. Okay, ये रही हमारी रिवर, ये रहा हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये हुई ब्रह्मपुत्र ओरिजिन के नाम पे जब ये चल रही है तो ये चल रही है तिब्बत में, तो इसका नाम होगा क्या? यारलुंग सापो. नाम क्या होगा? यारलुंग सापो. Okay, so now let's do a quick revision. Okay, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ओरिजिन के बाद अलग अलग जगहों पे नाम क्या है, नाम के बाद क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, और दो स्पेशल चीज है क्या कि एंटर कहां से करती है? नामचापारवा से, और उसके बाद जो एक रिवरराइन आइलैंड बनाती है उसका क्या नाम है? माजुली आइलैंड. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ दिस इज द ओरिजिन. व्हाट इज द नेम ऑफ ओरिजिन? चिमायोंगडोंग ग्लेशियर. चिमायोंगडोंग ग्लेशियर कहां पे है? मानसरोवर. चिमायोंगडोंग ग्लेशियर इज इन मानसरोवर.
मानसरोवर लेक। चिमायोंगडोंग ग्लेशियर के पिघलने से बनती है मानसरोवर, राकस मानसरोवर लेक। राकस मानसरोवर लेक। ये जो राकस मानसरोवर लेक है, चिमायोंगडोंग ग्लेशियर, राकस मानसरोवर लेक, ये हो गया है ओरिजिन। इसके बाद ये जब तक तिब्बत में है तब तक इसका नाम है यारलुंग, यारलुंग सापो, यारलुंग सापो। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, विच इज यारलुंग सापो, विच इज यारलुंग सापो, यारलुंग सापो। अब यारलुंग सापो इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करते ही साथ, इंडिया में एंटर करते ही साथ किस पॉइंट पे एंटर करती है? इस पॉइंट को बोलते हैं नामचा पारवा, नामचा पारवा, नामचा पारवा, नामचा पारवा। नामचा पारवा के बाद जो हमारी ब्रह्मपुत्र है ये जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम होता है? सियांग, सियांग एंड दिबांग, सियांग एंड दिबांग। सियांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश में जाती है। फिर एक टर्न लेती है, एक टर्न लेती है और एक आइलैंड बनाती है। इस आइलैंड को हम क्या कहते हैं? इस आइलैंड को हम कहते हैं माजुली आइलैंड। इस आइलैंड को हम कहते हैं माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड, Majuli Island. Majuli Island is the world's largest riverine island. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवरराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड। इसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र जाती है असम में, और असम में फाइनली असम में ब्रह्मपुत्र को नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र असम में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में क्या नाम होता है? बांग्लादेश में क्या नाम होता है? जमुना। जमुना। अब बांग्लादेश में नाम पड़ जाता है जमुना। हमने ये देख लिया ओरिजिन कहां से होता है, तिब्बत से, चिमायोंगडोंग मानसरोवर लेक। उसके बाद यारलुंग सापो। यारलुंग सापो इंडिया में कहां से एंटर करती है? इंडिया में एंटर करती है नामचा परवा से। नामचा परवा के बाद अरुणाचल प्रदेश में जाती है, तो क्या नाम होता है? सियांग, दिबांग। फिर एक रिवरलाइन आइलैंड बनता है, क्या नाम होता है उसका? माजुली आइलैंड। उसके बाद फिर आसाम में क्या नाम होता है? फाइनली ब्रह्मपुत्र। और फिर ये जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है? जमुना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज, सिक्किम से कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही थी? सिक्किम से आ रही है तीस्ता। लेट मी चेंज द कलर आई गेस। ओके, सो नाउ ट्रिब्यूटरीज में आती है तीस्ता। तीस्ता कहां से आ रही है? तीस्ता आ रही है सिक्किम से। सिक्किम से आ रही है तीस्ता। फिर क्या आ रही है? फिर आ रही है मानस। मानस कहां से आ रही है? चाइना से। फिर इसके बाद कौन सी आ रही है? इसके बाद आ रही है कामेग। कामेग कहां से आ रही है? चाइना से। फिर इसके बाद कौन सी आ रही है? इसके बाद आ रही है सुभानश्री कहां से आ रही है? अगेन चाइना से। ये हो गई है राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। नंबर 1 तीस्ता जो आ रही है सिक्किम से, नंबर 2 मानस जो आ रही है चाइना से, नंबर 3 कामेग जो आ रही है कहां से? अगेन चाइना से। देन नंबर 4 शुभांश्री जो आ रही है चाइना से। फिर आते हैं हम माजुली आइलैंड
के राइट से जो आ रही है उसको हम कहते हैं लोहित। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है लोहित। लोहित आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। लोहित आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। वन सेक, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश से आ रही है लोहित। लोहित के बाद आ रही है धनश्री। धनश्री, धनश्री, धनश्री कहां से आ रही है? धनश्री आ रही है, धनश्री आ रही है नागालैंड से। नागालैंड से ओरिजिन हो रहा है धनश्री का। और धनश्री के बाद फाइनली आ रही है कुशियारा, और कुशियारा आ रही है अगेन नागालैंड से। सो दिस इज ब्रह्मपुत्र इन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। वी सॉ द ओरिजिन, वी सॉ द ट्रिब्यूटरीज, वी सॉ कहां से इंडिया में एंटर करती है, एंटर करने के बाद क्या नाम होता है, एंटर करने के पहले क्या नाम होता है, बांग्लादेश में क्या नाम होता है। अगेन वी सॉ कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। These are all the questions expected from Brahmaputra. The next river which we would be seeing is exactly Ganga. So now moving on to the next Himalayan river. The next Himalayan river is Ganga. See, the next Himalayan river is Ganga. Now in Ganga, the most asked question is the convergence of two rivers. They won't start directly with what is the origin of Ganga, but they would ask you about few points. Now, what are those points? They will ask you about what is, one sec. Yes. They'll ask you what is this? Devprayag. They'll ask you what is Rudraprayag. They'll ask you what is Karnaprayag. They'll ask you what is this point Nandprayag called, and then what is this Vishnuprayag? Vishnuprayag, which is also known as Joshmat. Vishnuprayag or Joshimat. See, अब क्या होता है, रिवर निकलती है अलकनंदा। रिवर अलकनंदा is originated from Badrinath. From Badrinath, river Alaknanda is originated. जो बद्रीनाथ है वहां से अलकनंदा निकली। अब अलकनंदा बह करके जा रही है और अलग अलग नदी अलकनंदा से मिलती जा रही हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा से विष्णुप्रयाग या फिर जोशमठ पे मिलती है धौली गंगा। सबसे पहले धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं विष्णुप्रयाग पे, जिसे हम बोलते हैं जोशमठ। धौली गंगा अलकनंदा मिलती है विष्णुप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा आगे बहती है और अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है। अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है नंदप्रयाग पे। अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी से नंदप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते पिंडर गंगा से मिलती है कर्णप्रयाग पे। अलकनंदा पिंडर गंगा से मिलती है कर्णप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा आगे जाती है और आगे आती है मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से निकल रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं रुद्रप्रयाग पे। पता होगा आपको केदारनाथ पे कितनी हाई फ्लडिंग हुई थी, और तो इसी से याद रखिए कि केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रहे हैं रुद्रप्रयाग पे। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट देवप्रयाग। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और अलकनंदा।
भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग पे। जो अलकनंदा होता है, अलकनंदा का लाइट ग्रीन कलर का वाटर जो अलकनंदा में होता है, और लाइट ब्लू कलर का वाटर जो भागीरथी में होता है, वो यहां पे मिलता है देवप्रयाग में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि देवप्रयाग में कौन सी दो रिवर्स मिलती हैं। द आंसर टू इट इज अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा एंड भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पे। वंस मोर, सबसे पहले अलकनंदा कहां से निकल के आ रही है? बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली और फिर विष्णुप्रयाग या फिर जोशमठ विष्णुप्रयाग पे मिली धौली गंगा से। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी से मिलती है नंदप्रयाग पे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ती है तो मिलती है पिंडर गंगा से कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग पे। उसके बाद थोड़ा और आगे आती है अलकनंदा तो मंदाकिनी से मिलती है कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग पे। उसके बाद अलकनंदा थोड़ा और आगे आती है। तो दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट देवप्रयाग। नाउ these are all the points जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद गंगा की कुछ लेफ्ट हैंड और कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में कुछ डैम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो नाउ you all should draw this with me. Yes. Now everyone draw this with me. This is our main गंगा जो ये देवप्रयाग तक हम पढ़ चुके थे। देवप्रयाग के बाद ये है ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। ऋषिकेश मतलब अभी तक हमारी गंगा पहाड़ों में ही है। पहाड़ों के बाद जैसे ही प्लेन एरिया में गंगा आती है तो प्लेन एरिया में आते ही साथ हम इसे बोलते हैं कि यह है हरिद्वार। अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि में सब कहाँ जाते हैं? हरिद्वार क्यों जाते हैं? ऑफ कोर्स गंगा जी का पानी लाने के लिए। तो ये है हरिद्वार जहां से गंगा प्लेन एरिया में आती है। अब इसके बाद गंगा की कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज इज रामगंगा का ओरिजिन होता है नैनीताल से। देन इज गोमती का ओरिजिन होता है पीलीभीत यूपी में। गोमती के बाद आती है घाघर का ओरिजिन होता है नेपाल चाइना में। उसके बाद घाघर, ओके, ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, घाघर को लेकर के डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। दिस इज एन आस्क्ड क्वेश्चन कि घाघर को लेकर के किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। तो घाघर को लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट है। घाघर के बाद आती है गंडक। घाघर के बाद आती है गंडक के बाद आती है कोशी। Kosi is also known as sorrow of Bihar. Why is it called sorrow of Bihar? Why is Kosi called sorrow of Bihar? क्योंकि कोसी की वजह से हर बार बिहार में फ्लड्स आते हैं। That's why Kosi is called sorrow of Bihar. And finally, it is
महानदी, सॉरी महानंदा। महानदी हम पेनिनसुलर इंडिया में पढ़ने वाले हैं, यहां पे होती है महानंदा। महानंदा, दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजिंग पॉइंट to the final. After Kosi, it's Mahananda. Once again, Ramganga, Gomti, Gandak, Ghaggar, Gandak, Kosi, and then Mahananda. These all are one sec. Yes, these all are the left hand tributaries. These all are the left hand tributaries. Now, talking about the right hand tributaries. Talking about I should write it in different color. The right hand tributaries. Right hand tributaries में आपको 3 tributaries मेन याद रखनी है बस। See, सबसे पहले आती है आपकी यमुना। सबसे पहले आती है आपकी यमुना। सबसे पहले आती है आपकी यमुना। यमुना के बाद आती है आपकी सोन। यमुना के बाद आती है आपकी सोन। सोन जिसका ओरिजिन होता है अमरकंटक पे, सोन जिसका ओरिजिन होता है अमरकंटक में। और सोन के बाद आती है आपकी दामोदर। सी, ये जो गंगा है, गंगा बांग्लादेश में जाने के बाद डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है और एक पार्ट इंडिया में आ जाता है। जो पार्ट इंडिया में आ जाता है उसको हम कहते हैं हुगली। जो पार्ट इंडिया में आ जाता है उसको हम कहते हैं हुगली। हुगली पे ही है आपका हावड़ा ब्रिज। और जो पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है उसका नाम हो जाता है पद्मा। एग्जैक्टली, जो पार्ट गंगा का जो पार्ट बांग्लादेश में चला जाता है उसका नाम हो जाता है पद्मा। और बांग्लादेश का और गंगा का जो पार्ट बांग्लादेश में डिवाइड होने के बाद इंडिया में वापस आ जाता है उसको हम कहते हैं हुगली। नाउ हुगली की ट्रिब्यूटरी होती है दामोदर, एंड दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल इज नोन एज दामोदर। दामोदर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल। नाउ आपको यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, पर यमुना की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि चंबल, नंबर 1 इज चंबल। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। देन केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। एंड देन देयर इज बेतवा। एमपी में एक डैम बनाया जा रहा है, एमपी में एक डैम बनाया जा रहा है केन और बेतवा के बीच में, ताकि एमपी में ज्यादा वाटर प्रोवाइड किया जा सके, जिसकी वजह से पन्ना नेशनल पार्क जो है वो सबमर्जेंस के पॉइंट पे आ जाएगा। दिस इज अ एनवायरमेंटल कंसर्न, इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। अब एज ये न्यूज में था तो इससे रिलेटेड जो भी रिवर्स हैं वो भी न्यूज में होंगी, और उससे रिलेटेड जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और उसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि केन एंड बेतवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। देन बेतवा पे एक डैम है, बेतवा पे एक डैम है। इस डैम का नाम है माटाटीला। माटाटीला डैम इज ऑन बेतवा। चंबल पे भी कुछ डैम है। चंबल पे सबसे पहला डैम है गांधी सागर। गांधी सागर के बाद है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। फिर आता है कोटा बैराज। एंड द फाइनल वन इज जवाहर सागर। These are the important dams which
could be asked to you in your exams. Now, you know everything about Ganga, which could be asked to you in your exams. Revising it for one last time. Right hand tributaries, Yamuna, Son and Damodar. Damodar is the tributary of Hooghly. Hooghly is the part which is divided when Ganga goes into Bangladesh. गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा. Then moving on to the left hand tributaries. In left hand tributaries we have रामगंगा जो नैनीताल से ओरिजिन होता है, देन गोमती पीलीभीत उत्तर प्रदेश, देन घाघर. आफ्टर घाघर, घाघर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. देयर आफ्टर कम्स गंडक. गंडक के बाद कोशी. कोशी इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार एंड दामोदर इज नोन एज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल. दामोदर इज सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गंडक इज and Kosi is sorrow of Bihar. Thereafter, Mahananda. These are the right hand tributaries of Ganga, and we are done with Ganga. Now comes the final river, which is Indus. Now, the final river is Indus. Indus River is the third and final river in Himalayan river system. See, here we'll see Indus में सबसे पहले तो ये होती है हमारी इंडस. अब इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और उनका एक सीक्वेंस है, तो याद रखना. इंडस के बाद आता है झेलम. इंडस के बाद आता है झेलम के बाद आता है चिनाब के बाद आता है रावी के बाद आता है ब्यास और ब्यास के बाद आता है सतलज. ये 6 रिवर्स हैं. हमें इन 6 रिवर्स के बारे में पढ़ना है. इन 6 रिवर्स का ओरिजिन क्या है? इंडस इज द मेन रिवर. सी, दिस इज इंडस इज द मेन रिवर. इंडस की ट्रिब्यूटरी है झेलम के बाद आती है चिनाब के बाद आती है रावी के बाद आती है ब्यास एंड देन द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज सतलज. अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई है फॉर द वाटर ऑफ इंडस रिवर इन विच इट इज सेड कि इंडस झेलम चिनाब ये जो टॉप की 3 रिवर्स हैं इसमें 80% वाटर जाएगा पाकिस्तान एंड 20% वाटर इंडिया को मिलेगा. ये जो नीचे की 3 रिवर है रावी, व्यास एंड सतलज, इसमें 80% वाटर इंडिया को मिलेगा एंड 20% वाटर वुड गो टू पाकिस्तान. दिस इज इंडिया पाकिस्तान वाटर ट्रीटी. नाउ लेट्स सी कि इंडस का ओरिजिन कहां से होता है. दिस इज लेक मानसरोवर से इंडस का ओरिजिन होता है. दिस इज इंडस और सिंधु का ओरिजिन होता है लेक मानसरोवर से, जिसे कहा जाता है चांगला पास. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पास एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि फ्रॉम विच पास डस इंडस एंटर्स इनटू इंडिया. तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस एंटर्स फ्रॉम चांगला पास इंडस एंटर्स इन इंडिया. इंडिया में एंटर करने के बाद लेह लद्दाख से होते हुए चली जाती है कहां? पाकिस्तान में. और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज को जो हमें आगे पढ़नी है. द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज झेलम का ओरिजिन कहां पे हो रहा है? यहां जम्मू एंड कश्मीर में झेलम का ओरिजिन हो रहा है एंड द पॉइंट इज कॉल्ड स्प्रिंग अब देखिए, ये जो झेलम रिवर है हमारी, ये जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिन हुआ. इसका ओरिजिन हुआ स्प्रिंगट वेरीनाग में झेलम का ओरिजिन हुआ. और फिर झेलम पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है. झेलम पे
वन सेक, झेलम पे, ये है झेलम, और झेलम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है वुलर लेक। वुलर लेक, वुलर लेक। अब वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। नंबर 1, वुलर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक। Wooler Lake is a freshwater lake and Wooler Lake is a oxbow lake. Wooler Lake is a freshwater lake and Wooler Lake is a oxbow lake. And Wooler Lake is over which river? Jhelum River. This question has been asked कि Wooler Lake, this question has been asked कि Wooler Lake किस river पे है? तो झेलम लेक पे, झेलम पे है Wooler Lake. Thereafter comes चिनाब। तो चिनाब का ओरिजिन कहां से हो रहा है? ये आ रही है बारालाचाला पास से। ये जो चिनाब है हमारी, इफ यू कैन सी, आई जस्ट हाईलाइट इट इन ब्लैक, दिस इज चिनाब, दिस इज चिनाब, दिस इज चंद्रा एंड भागा, चंद्रा एंड भागा रिवर, चंद्रा एंड भागा रिवर मिलकर के बनाती है चिनाब रिवर। और ये चिनाब रिवर हमारे यहाँ इंडिया में कहां से आ रही है? चिनाब रिवर इंडिया में आ रही है बारालाचाला पास से। बारालाचाला पास से चिनाब रिवर इंडिया में एंटर करती है। इसके बाद इस पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, तो प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट डैम विच इज दलाल लैम, सलाल लैम, Dalhasti Dam, Dalal Dam, Salal Dam and Dalhasti Dam. Dalal, Salal, Dalhasti. These 3 dams are very important, which are on river, yes, Chenab. Thereafter, Beas. Sorry, thereafter, first we have Ravi and then Vyas. इस मैप पे आपको एक ही लाइन, हाँ ये रही, लेट मी हाईलाइट इट विद रेड। ये देखिए, ये है रावी, ये है रावी, और फिर रावी के नीचे ये आती है व्यास। तो ये जो रावी रिवर है, ये जो रावी रिवर है, रावी रिवर का ओरिजिन होता है कुल्लू हिल से। रावी रिवर का ओरिजिन होता है कुल्लू हिल्स में। कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास, रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स रोहतांग पास में, कुल्लू हिल्स रोहतांग पास से ओरिजिन होता है रावी का। रावी रिवर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, रावी रिवर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। काफी बार पूछा जा चुका है रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम। आई राइट इट डाउन फॉर यू, रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम विच इज ऑन रावी रिवर। रावी रिवर के बाद आती है व्यास रिवर, रावी रिवर के बाद आती है व्यास रिवर। I should choose a different color pen. Yes, black is visible. व्यास रिवर। Now, व्यास रिवर का origin, I'll write it over here. व्यास रिवर, व्यास रिवर का origin कहां से होता है? व्यास रिवर का ओरिजिन, व्यास रिवर आती है अगेन रोहतांग पास से, रोहतांग पास। व्यास रिवर आती है रोहतांग पास से, और व्यास रिवर पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। पोंग डैम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है कि पोंग डैम इज ऑन विच रिवर। यू शुड बी एबल टू टेल कि पोंग डैम इज ऑन ब्यास रिवर। ऑन ब्यास रिवर वी हैव पोंग डैम। Thereafter, the final and the largest tributary of Indus, which is Satluj. Now, this comes Satluj. Satluj is the longest tributary. Satluj is the longest tributary. And it
is the longest tributary. Write down. Satluj is the longest tributary. Satluj is the longest tributary and it originates from Mansarovar, Raka Dam. Mansarovar, Raka Lake. सतलज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है. सतलज पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है और इस डैम का नाम है भाखरा नागल डैम. भाखरा नागल डैम. I think if I'm not wrong, then CDS 2021 के फर्स्ट पेपर में ही पूछा गया था कि भाखरा नागल डैम किस रिवर पे है. तो भाखरा नागल डैम सतलज पे है. नाउ दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डैम्स एंड ओरिजिन्स which you need to remember in case of Indus River, and that's all. We are done with the Himalayan river. In Himalayan river, what we have studied? We have studied Brahmaputra, we have studied Indus, and we have studied Ganga. These are all the questions which could be asked to you. The origin, the tributaries and the dams which are situated on these rivers. Now, do watch this video twice for your better understanding. Make notes and just go through your notes once or twice and you are good to go. You are good to solve 3 to 4 questions coming in your exam. That's all from my side. Thank you.